دوسری جانب پی ٹی آئی کا جیلوں میں سیاسی قوت کا مظاہرہ۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے شرمناک بات کوئی نہیں کہ ملک کا سربراہ باہر جا کر قرضے مانگے۔ ان کے دور میں نریندر مودی کی جرأت نہیں تھی کہ فوج کے خلاف بات کرتا۔ شہباز شریف، جو میں میر جعفر کہتا ہوں وہ تم ہو۔ اب 20 نہیں 25 لاکھ افراد اسلام آباد پہنچیں گے۔ ہماری جماعت چاروں صوبوں کی جماعت ہے۔ پاک فوج اور تحریک انصاف پاکستان کو متحد رکھ رہے ہیں۔ بھارت کو پتہ ہے فوج اور میرے ہوتے ہوئے کوئی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کابینہ کا سزا یافتہ شخص سے ملنے لندن جانا پاکستان کی توہین ہے۔ اس سے شرمناک بات نہیں ہے جب ایک ملک کا سربراہ کسی اور ملک کے سامنے جا کے قرضے مانگتا ہے۔ میرے دور میں مودی نے یہ کیوں نہیں کہا؟ وہ میری فوج کے خلاف اس کی جرأت نہیں تھی بات کرنے کی۔ شہباز شریف، جو میں میر جعفر کا کہتا ہوں تم ہو وہ میر جعفر۔ انشاءاللہ 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچیں گے۔ اب وہ نمبر چلا گیا 25 لاکھ پہ۔ تحریک انصاف جو سارے پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے، آج پاکستان کو جو اکٹھا رکھیں گے، ایک پاکستان کی فوج اور دوسرا تحریک انصاف، ان دو کے ہوتے ہوئے پاکستان نہیں ٹوٹے گا۔ جو سزا یافتہ ہے، جو جھوٹ بول کے بھاگا ہے، اس نے ساری کیبنٹ کو لندن بلا لیا ہے۔ یہ ہے اس ملک کی توہین۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے آئین شکنی کے معاملے پر اعلیٰ اختیاراتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کمیشن مکمل تحقیقات کرے کہ کہاں کہاں آئین شکنی ہوئی۔ آئین شکنی کرنے والوں سے پیپلز پارٹی کی جنگ ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، بلاول بھٹو نے کہا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اعلیٰ اختیاراتی کمیشن بنایا جائے۔ یہ کمیشن مکمل تحقیقات کرے کہ کہاں کہاں آئین شکنی ہوئی۔ آئین شکنی کرنے والوں سے پیپلز پارٹی کی جنگ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ اس کے ایک ہائی پاور پارلیمانی کمیٹی، پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے جو پوری تحقیقات ہو کہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے، جمہوریت کے ساتھ کھیل کیا گیا ہے، اس سازش میں کون کون ملوث ہے اور ان کے خلاف کیا قانونی ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارا موقف ہے، یہ ہمارا مطالبہ ہے اور امید ہے اس پہ عمل ہوگا۔ وزیر خارجہ نے کہا ملک بھر میں بجلی کا شدید بحران ہے، مقابلے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنے ادوار میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی۔ دیکھنا ہوگا کہ پچھلی حکومت میں ایسا کیا ہوا کہ بجلی کا بحران پیدا ہو گیا۔ پاکستان میں جو بحران ہے، جو پاور کا بحران ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سب مل کے محنت کرنا پڑے گا۔ پچھلے 10 سالوں میں جو کام پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس ملک کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ایسے کیا ہوا پچھلے 3 سالوں میں؟ کیا نالائقی، کیا ناکامی، کیا کرمنل نیگلیجنس کیا گیا کہ ہم اب اپریل اور مئی کے مہینے میں بھی بدترین لوڈ شیڈنگ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے بتایا کہ دورہ امریکہ کا شیڈول ابھی طے نہیں پایا۔ جیکب آباد اور دادو میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، ان کا خیال کرنا ہوگا۔ قیامت خیز گرمی اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے لاہور کے شہریوں کا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ موسم سے متعلق مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل خان۔ فیصل خان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا کہ لاہور میں اس ٹائم قیامت کی گرمی پڑ رہی ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح اپریل کا مہینہ لاہور میں گزرا ہے اس طرح سے تو لاہور میں کبھی بھی نہیں ہوا، اور یہ پچھلے 60 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ اور اب تو ویسے مئی کا مہینہ آ گیا اور اچھی خاصی گرمی ہے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، دھوپ میں ابھی اس وقت ہی بہت زیادہ تیزی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ 12-1 بجے کیا حالات ہوں گے۔ اور اس ٹائم کا ٹیمپریچر 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور 12-1 بجے جب پیک پہ دن پہنچے گا تو اس پہ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ 42 تک جائے گا۔ اور یاد رہے کہ یہ مئی کا ابھی آلموسٹ ابھی سیکنڈ ویک چل رہا ہے، ابھی جون آنا ہے، تو اتنی زیادہ گرمی ہے۔ اور اوپر سے اس گرمی کا توڑ یہی ہوتا ہے کہ لائٹ آ رہی ہو، پنکھے چل رہے ہوں، اے سی تو ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور اس کے باوجود حکومت کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے بہت زیادہ تنگ ہو رہے ہیں۔ اور جب ہماری بات ہوئی محکمہ موسمیات سے تو ان کا کہنا تھا کہ آئندہ پورے 1 ہفتے تک موسم جو ہے اسی طرح کا رہے گا۔ آندھی کی بھی امید نہ رکھیں، کیونکہ عام طور پہ لاہور میں ایسے ہوتا تھا کہ اگر دن کو گرمی پڑی ہے تو رات کو آندھی آ جایا کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں اس کی بھی امید نہ رکھیں، اور موسم اسی طرح کا ڈرائی رہے گا، اور موسم میں بہتری کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ فیصل خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप हमारे खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि काबीना ने सदर की आइन शिकनी पर वज़ारत कानून को इक़दामात की हिदायत कर दी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वफाकी काबीना ने गवर्नर पंजाब की बरतरफी के फैसले की तौसीक कर दी है। बेहज़ाद सलीमी की रिपोर्ट। आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक लगी, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल ज़ेर बहस आई और अहम फैसले भी किए गए। मीडिया ब्रीफिंग में मरियम औरंगज़ेब ने सदर आरिफ अलवी को आइन शिकनी का मुर्तकिब करार दिया। बोली, काबीना में सदर की आइन शिकनी के हवाले से तफसीली मुशावरत हुई। वज़ारत कानून को इसके सद्देबाब के लिए हिदायत की गई है। देखिए, इसके ऊपर आज काबीना में बड़ी ही तफसीली मुशावरत हुई है, क्योंकि जिस किस्म की मैंने पहले कहा कि आइन शिकनी 3 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल को देखी और एक शख्स के हुक्म के ऊपर सदर, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, गवर्नर पंजाब, ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं और इनके आइनी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल पाकिस्तान की जो आइन है उसके ऊपर हमला है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, वफाकी काबीना ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की बरतरफी के फैसले की तौसीक कर दी है। कोई आईनी ओहदेदार अपने इख्तियारात से तजावुज़ ना करे। कोई आईनी ओहदेदार जो है वो अपनी हदूद से तजावुज़ ना करे। मुल्क को किसी आईनी बहरान की तरफ दानिस्तार धकेलने की कोशिश ना की जाए। मरियम औरंगज़ेब ने DGIB की तैनाती, चेयरमैन वापडा के इस्तीफे की मंजूरी और 1 से ज़ायद गैर मुल्की पासपोर्ट्स मनसूख करने की तफसीलात कुछ यूं बताई। 1 से ज़्यादा गैर मुल्की पासपोर्ट जिनके पास भी है उनको मनसूख करने की मंजूरी दी है और ना सिर्फ ये मंजूरी कि उनको मनसूख किया जाए, बल्कि आइंदा इसको कैसे रोका जाए उसके ऊपर भी एक कंप्लीट हिकमत अमली जामिया बनाने की हिदायत दी है, जो चंद ही दिनों में फाइनल होकर बता दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निजी दौरे पर लंदन जा रहे हैं, जहां वो नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मेंबर्स हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो जा रहे हैं एक प्राइवेट विजिट के ऊपर मिलने अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि रमजान पैकेज के तहत आटे और चीनी के तयन किए गए नरखों को आइंदा भी जारी रखने का फैसला किया गया है। बेहज़ाद सलीमी, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही ने कायम मुकाम गवर्नर बनने से इनकार कर दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ के मुताबिक गवर्नर हाउस का अमला पंजाब असेंबली में समरी पर दस्तखत के लिए आया था, उसे वापस भेज दिया गया। गवर्नर हाउस के बाहर जिस तरह पुलिस तैनात की गई है, इन हालात में वहां कौन जाएगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान और एमल वली खान ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया ने भी अहम मुलाकात की। आज़म से मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम और समाजी फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म से एमल वली खान की सरबराही में अवामी नेशनल पार्टी के वफ्द ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने जमहूरियत आइन की पासदारी और अवामी फलाह बहबूद के लिए अवामी नेशनल पार्टी के ताउन का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दोनों जमातों ने मिलकर मईशत की बहाली और जमहूरियत की मजबूती के लिए काम करने पर भी इत्तफाक किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया हार्ट विग शेफर ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की में आलमी बैंक के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म और वर्ल्ड बैंक के नायब सदर ने मुश्तरका मकासद के हसूल के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तफाक किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़त का जवाब दे दिया। ख़त में हुकूमत की तब्दीली की मुबैना साजिश की तहकीकात पर जोर देते हुए कहा गया कि एक खुद मुख्तार और आज़ाद कौम को शदीद ठेस पहुँची, मामले की तफसीली जाँच और तहकीकात की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस बाइख्तियार अदालती कमीशन कायम करें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इमरान खान के खत का जवाब। कहा, अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर की तरफ से भेजी गई साइफर की कॉपी पढ़ी। साइफर में वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र किया गया। साइफर में तहरीक की कामयाबी की सूरत में माफी और नाकामी की सूरत में संगीन नताइज का भी जिक्र किया गया। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान ने बजा तौर पर डी मार्च जारी किया। धमकियां खुफिया और जाहिरन दोनों हो सकती हैं। हुकूमत में तब्दीली की मुबैना साजिश की मुकम्मल तहकीकात की जरूरत है। सदर मुमलिकत ने कहा कि इमरान खान का खत वजीर आजम पाकिस्तान और चीफ जस्टिस को भेज रहा हूँ। चीफ जस्टिस मामले की तहकीकात और समाअत के लिए बाइख्तियार अदालती कमीशन कायम करें।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नैब ने साबिक खातून अव्वल की दोस्त फराह खान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों के केस में बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया है। नैब ने फरहत शहजादी और उनके शौहर एहसन इकबाल जमील का रिकॉर्ड SCCP से तलब कर लिया। रिकॉर्ड की तलबी के लिए SCCP को मरासला भिजवा दिया गया है। मरासले के मुताबिक SCCP से फरहत शहजादी और उनके शौहर एहसन इकबाल जमील की कंपनियों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। नैब के मरासले में कहा गया है कि रिकॉर्ड डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन नैब अदील अहमद को फराहम किया जाए। चंद रोज कबल नैब इस्लामाबाद की जानब से फरहत शहजादी के खिलाफ तहकीकात के लिए नैब लाहौर को खत लिखा गया था। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने DG एंटी करप्शन समेत 4 आला अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने महकमा पुलिस के अफसर DIG सुहेल सुखेरा की खिदमात पंजाब हुकूमत के सपुर्द कर दी हैं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने महकमा पुलिस के ऑफिसर DIG सुहेल सकेरा की खिदमात पंजाब हुकूमत के सपुर्द कर दी हैं। DIG सुहेल सकेरा को पंजाब में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। सुहेल सकेरा को साबका हुकूमत के दौर में 10 साला ट्रांसफर पॉलिसी के तहत सिंध भिजवा दिया गया था। दूसरी जानब पंजाब हुकूमत ने DG एंटी करप्शन मंजूर हुसैन को सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन तैनात कर दिया है। सेक्रेटरी कानून अहमद रजा सरवर को DG एंटी करप्शन का इजाफी चार्ज दे दिया गया है, जबकि सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन अफजाल अहमद की खिदमात SNGDA के सपुर्द कर दी गई है। PTI के मुनहरिफ अरकान ने पंजाब असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंसेस का मामला मुनहरिफ अरकान के जवाबात की कॉपी न्यूज़ 1 को मौसूल हो गई। मुनहरिफ अरकान ने आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। अहमद नवाज की रिपोर्ट। PTI के मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंसेस का मामला। मुनहरिफ अरकान ने रेफरेंसेस को खिलाफ कानून आइन करार दे दिया। मुनहरिफ अरकान ने रेफरेंसेस को खिलाफ कानून और आइन करार देते हुए आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। न्यूज़ 1 को मौसूल दस्तावेजात में कहा गया है कि पार्टी सरबराह की जानिब से इलेक्शन से मुतालिक कोई तहरीरी हिदायत मौसूल नहीं हुई। शोकाज नोटिस में ज़ाब्ता अखलाक पर अमल नहीं किया गया। 63A की खिलाफ वर्जी से मुतालिक कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। मुनहरिफ अरकान की जानिब से कहा गया कि पार्टी सरबराह इमरान खान ने ज़ाती ख्वाहिशात के लिए परवेज इलाही को वज़ीर आला के लिए नामजद किया। माजी में इमरान खान ने परवेज इलाही को डाकू करार दिया था। मुनहरिफ अरकान ने कहा कि उनके खिलाफ झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। दस्तावेज के मुताबिक मुनहरिफ अरकान ने रेफरेंसेस को नाकाबिले समात करार दे दिया। कहा रेफरेंसेस ऐसे शख्स की तरफ से इरसाल किया गया जिसके मफादात का टकराव है। मुनहरिफ अरकान की जानिब से इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन रेफरेंसेस को खारिज करे। सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि रिवायत बन गई है कि पैसों से हुकूमत गिराई जाती है। चंद लोगों की खरीदो फरोख्त से 22 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल दाव पर होता है। हॉर्स ट्रेडिंग जमहूरियत और निज़ाम के लिए ख़तरा है। ऐसा जुर्म करने वालों को इसका फ़ायदा लेने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। PTI के वकील बाबर अवान ने कहा कि अवाम के पास वोट की ताकत के अलावा बोलने वाला कोई नहीं, जबकि 18वीं तरमीम में कैंसर का इलाज करने के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक 63A में बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ को आईनी तरमीम का इख्तियार दिया था। अदालत के इख्तियारात लामहदूद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अब वोट हो चुका, मुझ समेत सबको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। एक कहता है आजाद अदलिया चाहिए, दूसरा कहता है आइन के ताबे अदलिया चाहिए। आइन के ताबे पार्लिमान, एग्जीक्यूटिव और अदलिया होने चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार करते हुए कहा कि क्या सियासी जमात ज्वाइन करते वक्त ये हलफ लिया जाता है कि पार्टी सरबराह की हर बात पर अमल किया जाएगा। मुस्लिम लीग काफ के वकील अजहर सदीक ने कहा कि आइन ने पार्टी सरबराह को इख्तियार दिया है कि अपने अरकान के किरदार का तयन करे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आर्टिकल 63A मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई का फोरम मुहैया करता है। आर्टिकल 63A की सजा मुनहरिफ रुकन की रुकनीत का खात्मा है। PTI वकील के दलाइल मुकम्मल हो गए, जबकि अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए काफ लीग के वकील अजहर सदीक को बुध को 15 मिनट में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वक्त हो गया एक ब्रेक। वेलकम बैक। 13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद कौमी असम्बली इजलास का कोरम पूरा न कर सका। GDA ने अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी तक वॉकआउट कर दिया। नूर आलम ने इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक बिल ऐवान में पेश कर दिया, जिसे इंतखाबी इस्लाहात कमेटी को भेज दिया गया। मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि लाडले को क्यों ढील दी जा रही है, इसे कानून के शिकंजे में लाया जाए। सरदार हमीद की रिपोर्ट। कौमी असम्बली इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत हुआ। ताहिरा औरंगजेब ने ऐवान में बढ़ती महंगाई पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। कहा नून लीग के 2018 वाले दौर की कीमतें कब वापस आएंगी। जो मिडिल क्लास हमारा एक तबका था पाकिस्तान में, वो तो बिल्कुल नापेद हो चुका है। तो ये कितने अरसे तक हुकूमत 2018 की कीमतों पर चीनी, चावल, आटा, घी,
दालें सब्जियात लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। कुछ मुद्दत हो तो बता दें। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा गौस ने कहा कि पिछली हुकूमत महंगाई करके गई थी, हमने रमजान में रिलीफ दिया है, अब उसे आगे बढ़ा रहे हैं, जल्द महंगाई में कमी आएगी। कोशिश हम कर रहे हैं कि हम ये प्राइसेस नीचे ले आए। हालात साजगार नहीं छोड़ के गई पिछली हुकूमत, हालात साजगार अभी हमें नहीं मिल रहे इंटरनेशनली, मगर हम अपने तौर पे रात दिन एक कर रहे हैं, इंशाल्लाह कुछ पेशरफ जरूर होगी। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया, कहा दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं होना चाहिए। बिल इंतखाबी इस्लाहात कमेटी को भेज दिया गया। जो अमेरिकन पासपोर्ट जो ड्यूल नेशनल्स हो जाते हैं उनको आप कैसे राइट दे सकते हैं? उन्होंने तो वहां पे वफादारी की वो की होती है, तो उस लिहाज से आप उनको वोट का राइट नहीं दे सकते, क्योंकि आप ये बिल जो बिल लाया गया था पिछला भी, ये इसलिए लाया गया था कि उसमें ये लोग पार्टियों के लीडरशिप्स को चंदा देते हैं, पैसा देते हैं। विफाकी वजीर जावेद लतीफ ने साबिका हुकूमत पर कड़ी तनकीद की, कहा इमरानी फितने को फिलफौर रोकना होगा। स्टेट बैठकर एक फैसला करे कि ये जो इमरानी फितना पाकिस्तान के अंदर जन्म ले रहा है, क्या इसको परवान चढ़ना चाहिए? क्या हमारा दीन, क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस चीज की इजाजत देती है? अपोजिशन रुकन डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया, कहा आपको अपोजिशन को ज्यादा सुनना पड़ेगा। 1 माह गुजर गया, अपोजिशन लीडर नहीं बनाया जा सका। मेरी नजर में कोई पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है जब तक के अपोजिशन नहीं होगी। अगर इस पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी चाहते हैं तो आपको अपोजिशन को मजबूत करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको अपोजिशन को सुनना पड़ेगा, वरना आप के अंदर से जो अपोजिशन उठेगी शायद वो चीज फिर ना ये पार्लियामेंट बर्दाश्त कर सकेगी और ना ये मुल्क बर्दाश्त कर सकेगा। इजलास जारी था कि जीडीए रुकन गौस बख्श मेहर ने कोरम की निशानदही कर दी, जिसके बाद इजलास बुध को 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि जिसके साथ अपोजिशन के ज़्यादा मेंबरान होंगे उसी को अपोजिशन लीडर बनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफ़ों की तस्दीक का अमल जारी है। इमरान खान को भी ख़त भिजवा दिया है। कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से पार्लियामेंट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हवाले से अमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अपोजिशन लीडर का फैसला जल्द हो जाएगा। जिसके साथ अपोजिशन के ज्यादा मेंबरान होंगे उसे ही अपोजिशन लीडर बनाया जाएगा। ज्यादा जिसके साथ अपोजिशन मेंबरान होंगे, मेजोरिटी ऑफ दी अपोजिशन मेंबर्स जो वो एंजॉय करेगा उसी को बनाना पड़ेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पीटीआई अरकान के इस्तीफों की तस्दीक का अमल जारी है। इमरान खान को भी खत लिख दिया गया है। पीटीआई अरकान ने इस्तीफों की तस्दीक ना की तो फिर अपना फैसला करेंगे। तो हम उस पर फैसला करेंगे। पहले तो हम ये क्यों प्रिज्यूम करें कि वो नहीं आएंगे। एक जायज़ बात है, उनको आना चाहिए। उनको इस्तीफा अगर देना है फिर भी आना चाहिए, नहीं देना है फिर भी आना चाहिए। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात का अमल बजट इजलास के दौरान आगे बढ़ाया जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात के बाद इलेक्शन से मुतल्लिक फैसला होगा। इंतखाबी इस्लाहात के लिए जो कमेटी बने उसमें तमाम पहलुओं को सामने रखकर इंतखाबी इस्लाहात इस तरह की हों कि कल अगर इंतखाबात हम कराते हैं या मुल्क में होते हैं तो उस पर किसी को भी कोई एतराज न हो। उनका कहना था कि इमरान खान आज भी रुकने असम्बली हैं, उनको भी अपने इस्तीफे की तस्दीक करना होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पाकिस्तान में तैनात चीनी नाज़िमुल उमूर पोंग चेनशियू ने भी मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी नाज़िमुल उमूर ने दफ्तर ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से मुलाकात की और इन्हें वज़ीर ख़ारजा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाक चीन दोस्ती दुनिया में पायदार और मुसलसल ताल्लुकात की एक लाजवाल मिसाल है। राहदारी मनसूबा खित्ते में तिजारती अमल को फ़रोग़ देगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक जानिब बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने से लोड शेडिंग दोबारा 12 घंटे तक पहुंच गई है, तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर मुल्क भर में ज़ीरो लोड शेडिंग का दावा करते नहीं थकते हैं। कहते हैं वज़ारत तवानाई ने मौसम गर्मा में बिजली की लोड शेडिंग महदूद रखने के लिए 100 अरब रुपए इजाफी मांगे हैं। वज़ीर आज़म ने दरकार वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी है।
खुर्रम दस्तगीर की वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग 0 होने का बड़ा दावा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उन्होंने आवाम से एक अहद किया था कि वो 1 मई से बिजली की लोड शेडिंग जो है उसे 0 कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला का बेहद करम है कि उसने हमारी मेहनत कबूल फरमाई। वज़ीर तवानाई ने बताया कि वज़ीर आज़म ने शहरी और देही इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग में तवाज़न पैदा करने की हिदायत की है। मौसम गर्मा में लोड शेडिंग को महदूद करने के लिए 100 अरब रुपए इजाफी मांगे हैं। 100 अरब रुपया इजाफी दिया जाए तो अगले जो 4 से 5 महीने हैं मौसम गर्मा के, उसके अंदर हम लोड शेडिंग को महदूद कर सकते हैं। बताया कि वज़ीर आज़म ने नई पावर पॉलिसी बनाने की हिदायत की है। आगे बढ़ने का तरीका सूरज, हवा और पानी के जरिए सस्ती तवानाई पैदा करना है। बेहजाद सलीमी, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में मौसम गर्म ही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हमारे नुमाइंदे यासिर सलीम से बात करेंगे जो कि इस वक्त कश्मीर रोड पर मौजूद हैं। यासिर सलीम, बताएगा महकमा मौसमियात का क्या कहना है? बिल्कुल, कराची में गर्मी जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से मौसम की जो प्रेडिक्शन की गई थी कराची के लिए, आज गर्म मौसम का जो है वो दूसरा रोज़ है। कम से कम जो टेम्परेचर कराची का आज रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और मैक्सिमम जो कराची का टेम्परेचर जाएगा वो 37 से 38 डिग्री के दरमियान जो है वो रिकॉर्ड होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले जो 3-4 दिन हैं उसमें जो टेम्परेचर होगा वो 2 से 3 डिग्री जो है वो ज़्यादा महसूस किया जाएगा। यानी अगर टेम्परेचर 48 डिग्री या 37 डिग्री होता है तो वो 40 से 41 डिग्री जो है वो महसूस किया जाएगा। हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में कराची का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, गर्मी की शिद्दत और जो समुद्री हवाएं शहर की जानिब चलती हैं उसमें कमी की वजह से और बंद होने की वजह से मैक्सिमम जो है वो 40 तक चला जाए। लेकिन कराची के अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि कराची के अंदर जो है वो हीट वेव का कोई इम्कान नहीं है। सिंध के दूसरे शहर हैं जिसके अंदर लाड़काना, बद्दीन, ठट्टा और दूसरे इसके अलावा जो मीरपुर खास, यहाँ पे जो है वो हीट वेव के इम्कानात हैं, लेकिन कराची में हीट वेव के इम्कानात नहीं है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा आने वाले 5 से 6 दिन भी जो है वो कराची में खासे गर्म रहेंगे। बारिश का जो है वो कोई इम्कान कराची में मौजूद नहीं है। महकमा मौसमियात कहते हैं कि कराची का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो आज तकरीबन 38 डिग्री तक जाएगा। डॉक्टर से ठीक है यासिर सलीम। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की, जहां भारतीय बर्बरियत के इंतहा जिला अनंतनाग इस्लामाबाद में रात भर जारी रहने वाली वहशियाना कार्रवाई में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। 24 घंटों के दौरान शहीद होने वाले जवानों की तादाद 3 हो गई। कश्मीर मीडिया सर्विसेज के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने रात भर जिला इस्लामाबाद के इलाके करेरी दौड़ों का मुहासरा किए रखा। इस दौरान जिला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल रही। नाम निहाज सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वालों की शनाख्त आरिफ और सुहेल के नामों से हो गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़ 1 के साथ